उस समय में मैं बैंगलोर में अपनी इंटर्नशिप कर रहा था एंड आई एक्सप्लोर्ड द होल बैंगलोर इन ऑर्डर टू नो कि आखिर इसमें ऐसा क्या है कि पीपल आर गोइंग नट्स अबाउट दिस कैफे एंड द रीजन आई केम टू नो वाज quite simple yet very shocking. This cafe was just a cafe but not a normally open cafe. इस कैफे को खोलने एंड ऑपरेट करने के पीछे का एक एक स्टेप काफी स्ट्रैटेजिकली प्लान था which we are being taught in our MBA colleges. So बने रहिए हमारे साथ इस पूरे वीडियो में ये जानने के लिए कि कैसे रामेश्वरम कैफे become a hit in just 2 years of time without any external funding and with less number of outlets unlike desi chains like Chayos, Chai Point, Burger King, etc. बाकी अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आए, कुछ सीखने को मिले, तो join our community by subscribing to us. So before we dive into the great story of Rameshwaram Cafe, let's take a moment to talk about the power of good food. कोई delicious food बस कुछ फूड आइटम्स नहीं होते, बल्कि they are emotions. एंड लोगों को साथ लाने के लिए और एक कम्युनिटी से जोड़ने के लिए डिलीशियस फूड से अच्छी चीज कोई एग्जिस्ट करती ही नहीं है। रोड साइड के ठेले पर बिक रही फेमस दिल्ली के छोले कुलचे भी एक गो टू इवनिंग स्टॉपेज बन जाते हैं अपने दोस्तों से मिलने के लिए। एंड दैट इज व्हाट रामेश्वरम कैफे हैज डन। दिस स्मॉल कैफे चेन हैज बिकम अ हब फॉर फूडीज इन बेंगलुरु एंड थैंक्स टू इट्स माउथ वाटरिंग डिशेस एंड अफोर्डेबल प्राइसेस। बट वेट, मैंने तो अभी कहा कि दिस हैज बीन सेट अप इन अ वेरी कैलकुलेटिव वे एंड that is why we need to know a little bit about their history. It all started with a roadside cart and a dream, and the first brick of this dream was laid in 2021. आज से 2 साल पहले. Yes, you heard it right. In an era of COVID, by CA Divya Raghavendra Rao and her husband Raghavendra Rao. They both had a passion for food and a desire to share it with others. एक छोटा सा brief देना बहुत ही important है कि CA Divya Rao became CA at the age of 21 and then went to IIM Ahmedabad to pursue a course in finance and management. And चाहे specialization कोई भी हो, everyone in the first semester of MBA is taught every aspect and domain of business. And during a class at IIM Ahmedabad, the professor said something which really pained Divya a lot, and which was Indians are not good at running restaurants. That is why we learned case studies on McDonald's, Starbucks and KFC and not any Indian restaurant. और ये कोई छोटी बात नहीं थी। दिव्या ने इसे दिल पर ले लिया and she wanted to change that. और इसके बाद destiny heard her and she met Raghav, who had failed on cafe despite having 15 years of experience in food industry. But एक असली entrepreneur वही होता है जो कभी हार नहीं मानता. And he wanted to start again and approached Divya for advice on the numbers. दिव्या को कुछ बड़ा करना था and उससे भी important, she wanted to prove her professor wrong, which is why she left her high-paying job and joined Raghav as a partner in the cafe. They started off very small with just a few tables and chairs, but their food quickly gained a reputation of being some of the best in the city. And as the cafe's popularity grew, it started to attract attention from media. And अभी कुछ दिन पहले a video about cafe's success was posted on YouTube and was discussed about this on Zerodha's founder Nikhil Kamath's channel, which quickly went viral. If you'll see Rameshwaram, and I'll give an example. Yeah, I've been there, yeah. So they cut like 7,500 bills a day. Crazy. This is worth discussing, that a cafe having just 4 outlets does 4.5 crore of sales per month. This was just an emotional part of the story. Let me take you a little deeper on the numbers and the shallower part of their business. Rameshwaram Cafe started in JP Nagar, Bangalore. The cafe sold Indian delicacies जैसे कि घी इडली, डोसा, प्लेन इडली और फाउंडर्स के हिसाब से ये कैफे एक ट्रिब्यूट था टू द ग्रेट एक्स प्रेसिडेंट लेट डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम एंड हिज बर्थ प्लेस रामेश्वरम। इनिशियली उनका बिजनेस काफी स्लो था, but then something magical started to happen. More than 90% of the customers who visited the place posted the photos of the food. The cafe reached the highest rating of 4.5 out of 5 with just first 1000 customers itself. खाने का वेट करने के लिए people used to stand in queue till 1 AM even after having the second store. लेकिन इस पूरे सक्सेस की रेसिपी को अगर समराइज किया जाए तो as per interviews of CA Divya on Jar podcast and from the post of Mr. Aditya Arora, the CEO of Far Capital, they
use fresh ingredients like pure ghee. They prepare chutney and batter in 2 batches per day. They avoid refrigeration to maintain freshness of the food. They train their staff rigorously for 6 months to maintain standardization, installing self-ordering kiosks on the newly opened outlets to decongest load on cash counters. Currently उनके पास 4 stores हैं and all of them operating in Bangalore with stores as small as an area of 10 into 10. They process 7,500 orders daily, which generates approximately 4.5 crore worth of sales every month. They have staff of over 700 plus people and are going to open their stores in Dubai and Hyderabad. And one more thing, Divya and Raghav are married now. The story is so soothing and the lessons learned are so quite simple yet very effective. लेकिन wait, this is just the tip of the iceberg. This case study is an ocean of marketing lessons in itself. हमें किसी भी इंडस्ट्री में एंटर करने से पहले उसकी मार्केट साइज देखनी चाहिए, इफ इट इज ह्यूज और वेरी लेस, एंड दिस इज कॉल्ड टैम, टारगेट एड्रेसेबल मार्केट. एंड टॉकिंग अबाउट टैम ऑफ QSRs यानी कि क्विक सर्विस रेस्टोरेंट्स, इट इज मोर देन $800 billion वर्ल्ड वाइड एज पर स्टैटिस्टा. एंड अगर इंडिया की बात करें तो अकॉर्डिंग टू अ रिपोर्ट बाय researchandmarket.com 2022 में QSR मार्केट इंडिया में 1719 करोड़ इंडियन रुपीस यानी कि 171.9 बिलियन इंडियन रुपीस की थी, विच इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो टिल 431.27 बिलियन रुपीस बाय फाइनेंशियल ईयर 2027. मतलब कि CAGR ग्रोथ रेट ऑफ 20.47% अप्रोक्सीमेटली. सो इफ वी सी, ये इंडस्ट्री वन ऑफ द मोस्ट अट्रैक्टिव इंडस्ट्री बन जाती है टू स्टार्ट एनी बिजनेस. और ये बात तो कोई भी बता सकता है कि हंगर इज आवर नीड, एंड विद इंक्रीजिंग पॉपुलेशन एंड इंक्रीजिंग spending class, everyone wants to spend on food and clothes. Her next step includes naming the business. और यहाँ पर these two people played very well. They used a principle of marketing called emotional marketing or emotional branding. They chose the name Rameshwaram and बस उसे वही नहीं छोड़ दिया. They used the name to create emotional connection with people with this name by mentioning it everywhere. कि this cafe is a tribute to the missile man of India and our ex-president late Dr. APJ Abdul Kalam's birthplace, Rameshwaram. And to connect Indians and South Indian dishes, this name seemed really very perfect. And this can really be seen in all of the interviews, websites, blogs or everywhere online you could see. I may be wrong on this, लेकिन मार्केटिंग एंड बिजनेस पर्सपेक्टिव से दिस इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पार्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द ब्रांडिंग. एज किसी भी कंपनी का नाम उसके पोजिशनिंग को बहुत इंपैक्ट करता है. सेगमेंटेशन, टारगेटिंग एंड पोजिशनिंग आर द नेक्स्ट स्टेप्स इन एनी बिजनेस. And it is clearly evident seeing the location of outlets that they target the age group majorly consisting of 20 to 40 years and especially office goers and young adults. And eventually they became a sensation on social media. It became a hangout place for CXOs level meets after that. Talking about the positioning they tried and conveyed, as per what I was able to figure out, was कि they don't sell pure ghee idli dosa or any of the dishes, but they give you a place to bond, a place to hang out casually and enjoy friendship. क्योंकि क्वालिटी एंड मेन्यू आइटम्स सिमिलर टू दिस अदर चेन्स लाइक IDC मतलब कि इडली डोसा कॉफी भी बेचते हैं, बट वहाँ उनकी पोजिशनिंग डिशेस तक ही लिमिटेड होती है, कस्टमर सर्विस तक ही लिमिट होती है. लेकिन रामेश्वरम कैफे इज वे बियॉन्ड फूड. इट्स अ कम्युनिटी. QSR मॉडल सर्विस इंडस्ट्री में ऑपरेट करता है, इसीलिए देयर इज अ फ्रेमवर्क कॉल्ड 7 P's ऑफ मार्केटिंग, जिसमें हम इस इंडस्ट्री के सारे स्ट्रेटेजीज बनाते हैं, विच आर प्रोडक्ट, प्लेस, प्राइस, प्रमोशन, पीपल, प्रोसेस एंड फिजिकल एविडेंस. और अगर हम गौर से देखें तो इसके बाहर आपको कोई भी एलिमेंट नहीं मिलेगा जिसके सहारे रामेश्वरम कैफे ने अपनी स्ट्रैटेजी बनाई हो. प्रोडक्ट में अगर गौर करके देखें तो इनके मेन्यू आइटम्स काफी लिमिटेड होते हैं, जिससे कि उनकी स्टैंडर्ड मेंटेन अच्छे से की जा सके विथ प्रॉपर स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स. दे ऑफर ऑल द फेमस साउथ इंडियन डिशेस एंड अमंग देम ghee podi idli, filter coffee and dosa chutney are the best selling products. And the most interesting thing about their menu items कि उन्होंने टाइम स्लॉट्स के हिसाब से फूड आइटम्स डिवाइड भी किए हुए हैं एंड मेन्यू पर दिखाया भी हुआ है. अब जरा सोचिए कि आप रेस्टोरेंट में जाते हो एंड आप कुछ ऑर्डर करते हो एंड दे टेल यू कि ये तो नहीं है साहब, बस उसके बाद आपका मूड ऑफ हो जाता है. अगर आपके पास कोई और ऑल्टरनेटिव है तो आप उनके पास चले जाओगे अगली बार. इसीलिए कीपिंग दिस इन माइंड, दिस एग्जैक्ट टाइमिंग हैड बीन मेंशन्ड ऑन द मेन्यू कार्ड एंड ड्यू टू लिमिटेड food items, it becomes really easier for people like me and you to decide on what to eat. And with this,
there is very less time lost in order process from seeing the menu to ordering an item. प्राइसिंग स्ट्रैटेजी की अगर बात करूं तो बेंगलुरु के हिसाब से उन्होंने मिड प्रीमियम रेंज की प्राइसिंग रखी है, जिससे प्राइस किसी के लिए भी बैरियर ना बने और प्रीमियम फील भी आ जाए। एक मसाला डोसा 70 का एंड एक फिल्टर कॉफी 20 की, और 150 से 200 रुपए के अंदर सारे मेन्यू आइटम्स आ जाते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज किसी भी QSR इंडस्ट्री में होती है उसकी प्लेस यानी कि लोकेशन, एंड उनकी लोकेशन एकदम वेल क्राउडेड जगह पर है। इंदिरा नगर की आउटलेट भले ही छोटी है बट इट इज सराउंडेड बाय बिगर ब्रांड्स एंड फूड आउटलेट्स, एंड बाकी 3 जगह एकदम ऑफिस गोइंग रोड के जंक्शंस पर मौजूद है विथ वेरी वाइड एरिया एंड नो सीटिंग्स, जिससे ज्यादा लोग खड़े हो पाए एंड प्लेस क्राउडेड दिखे। और क्योंकि खड़े होने का एरिया ज्यादा है, मोर पीपल कैन स्टैंड एंड ईट एट अ प्रीमियम लोकेशन एट वेरी फीजिबल प्राइस। एंड ह्यूमन नेचर यही होता है कि भले ही फूड क्वालिटी कैसी भी हो, जहाँ क्राउड होती है वहाँ भीड़ अपने आप ही अट्रैक्ट होती है। और ये प्रैक्टिस आपको बेंगलोर में इजिली देखने को मिल जाएगा। मेनी ऑफ द फूड जॉइंट एरियाज आर वेल प्लान्ड इन सच अ वे कि आपको उस फूड कॉम्प्लेक्स एरिया में खाने के डिफरेंट आइटम्स के विंडोज दिख जाएंगे। एंड टी विंडो स्ट्रैटेजिकली ऐसे लोकेशन पर प्लेस किया जाता है कि साइड से लोग खड़ा होकर पूरा फुटपाथ कवर कर दें, जिससे कि सारे फूड विंडोज बाहर से कवर हो जाएं, सो दैट वी थिंक कि दिस इज अ क्राउडेड प्लेस, कुछ तो इसमें बात होगी एंड वी शुड डेफिनेटली ट्राई दिस। और उससे भी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि सिंस दे हैड प्लान टू सर्व ऑफिस गोअर्स, इसलिए उनके आउटलेट्स सुबह 6:30 से लेके 1 बजे सुबह तक खुलता है, ताकि कोई भी ऑफिस गोअर कैन ग्रैब द फूड एंड खाते खाते ऑफिस निकल जाए। उससे भी इंपॉर्टेंट चीज जिसने रामेश्वरम कैफे को सक्सेसफुल बनाया वो थी उनकी प्रमोशनल स्ट्रैटेजी। अकॉर्डिंग टू देम इट इज ऑल ऑर्गेनिक वर्ड ऑफ माउथ प्रमोशन। लेकिन एक स्ट्रैटेजी जो बेंगलोर में ऐसे बहुत फूड जॉइंट्स यूज करते हैं इन ऑर्डर टू गेट द ब्रांडिंग डन ऑर्गेनिकली इज दे ऑफर 365 डेज सोशल मीडिया कैंपेन, जिसमें कि यू जस्ट टेक अ सेल्फी, put on your stories and tag them and receive free food items। और ये मैंने अक्सर बेंगलुरु के मोस्ट ऑफ द सेमी प्रीमियम आउटलेट्स पर देखा। They never went to advertise about them and let people decide to share it on their social media. So crowd, social media and question answer forums became the gold mines for them। और बाकी के 3 फैक्टर्स जो इस इंडस्ट्री में इंपॉर्टेंट है, those are people, physical evidence and process, which were taken care of properly. Staffs are trained rigorously for 6 months to perform as per their standard operating procedure। Process को इतना robust बना दिया गया, मतलब कि each and every process from receiving orders and cooking to delivering, ये तीनों फैक्टर्स पे इतना ध्यान दिया गया कि फैक्टर्स लाइक इनएफिशिएंसी एंड इनकंसिस्टेंसी इन टेस्ट का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। एंड आफ्टर द इशू ऑफ क्राउड ऑर्डर मैनेजमेंट रोज, दे इंस्टॉल्ड सेल्फ ऑर्डरिंग kiosks to reduce the burden on ordering counter, which everyone started talking about on social media and become another factor for their success। इंटरनेट एक डेटाबेस है, मतलब कि यहाँ चीजें बहुत जल्दी फैलती हैं एंड लोग एक रिव्यू पढ़कर 10 दोस्तों को लेकर जाते हैं, एंड दैट इज हाउ दे हैड लॉट्स ऑफ फिजिकल एविडेंसेस फ्रॉम कस्टमर साइड इटसेल्फ ऑन द सोशल मीडिया। अब सुनने में तो काफी शॉकिंग लगता है कि ओनली विद दीज स्ट्रैटेजीज दे वुड हैव रीच्ड एट दिस पॉइंट, लेकिन फिर मैंने बहुत लोगों से सर्वे किया कि व्हाई डिड दे कम टू दिस प्लेस, तो ऑलमोस्ट all of them answered quality as well as premium food at a premium outlet having affordable pricing, and दूसरा था a casual hangout and meeting place with friends। भले ही none of them agreed for the recording to be posted, इसीलिए I could not attach it here, लेकिन आप खुद इस चीज को एक्सपीरियंस कर सकते हो अपने बेंगलुरु के दोस्तों से बात करके। लेकिन वो एक ही चीज थी जिसने रामेश्वरम कैफे को इतना बड़ा बनाया, और वो था हर एक स्ट्रैटेजी का प्रॉपर एग्जीक्यूशन। और ये सारे स्ट्रैटेजीज आपको क्राउडेड QSR में इजिली मिल जाएंगे, लेकिन सारे के सारे स्ट्रैटेजीज उनमें ढंग से इंप्लीमेंट नहीं किए गए थे, या फिर उन्होंने जानबूझकर नहीं किया होगा। आरोग्यहार एक ऐसा आउटलेट है जहाँ की टेस्ट एंड फूड क्वालिटी भी ऑसम है, एंड प्राइसिंग ऐसी कि कोई भी मिडिल क्लास उसको डेली अफोर्ड कर सकता है, एंड भीड़ इतनी कि शायद आप काउंटर तक भी नहीं पहुंच पाओ। लेकिन फिर भी रामेश्वरम कैफे गॉट all the balls sent to the stadium for 6 just because of proper strategic implementation। We need your support and we would improve ourselves every time according to your feedback in the comment box below, and our aim is to make business education free through our YouTube channel। We just need our family to grow bigger, and to join us please subscribe to our channel। See you in the next video।